Today's video is related to transportation problem. Understand? ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये एक्चुअली बहुत वास्ट है और ये एक्चुअली एमएससी मैथ्स तक के बच्चों के लिए, बट इट इज ऑल्सो related to commerce student. Now I will discuss with you as per the topic transportation problem, some questions in our mind. Now the first one, what is transportation problem? Understand? Second question, how many types of transportation problem? Third one, how many types of solutions under transportation problem? These are the three questions. All are important for you. Understand? Now the first one, what is transportation problem? That means definition of transportation problem. Transportation problem को मैंने 3 points में divide किया है, मतलब उसके definition को 3 points में divide किया है. The first point, transportation model is the one of the best model of लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल. अंडरस्टैंड? लीनियर प्रोग्रामिंग का एक स्पेशल मॉडल होता है, उस मॉडल का जो सबसे बेस्ट मॉडल होता है उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मानते हैं. नाउ द सेकंड, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. नाउ द थर्ड पॉइंट, फ्रॉम नंबर ऑफ ओरिजिन और सोर्सेस to number of location or destination. All are the included 3 points and the minimum cost is called transportation problem. Clear? Sorry. तो ये जो मैंने डेफिनेशन आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, इसमें कुछ पार्ट्स मैंने आपको बताया कि सोर्सेज, अंडरस्टैंड, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, लोकेशन, ये मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि क्या होता है, क्योंकि ये एक्चुअली मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है. तो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को मैं आपको इजी लैंग्वेज में, आप कह सकते हैं कि कमर्शियल लैंग्वेज, बट इट इज रॉन्ग वे. कमर्शियल लैंग्वेज में एक इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? 2 टाइप्स. फर्स्ट इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. Balanced transportation problems. Second, unbalanced transportation problem. Unbalanced transportation problem. Again, what is the meaning of both? That means what is balanced transportation problem and unbalanced transportation problem? It is a very simple. Understand? If total supply are equals to total demand, understand? If total supply are equals to total demand, such type of problem are also related to balanced transportation problem. Just opposite. If total supply are not equals to total demand, such type of problem is belongs to unbalanced transportation problem. तो एक नया वर्ड फिर से आपके पास आ गया. ठीक है, कितने कितने वर्ड्स आते जा रहे हैं उसको मैं लास्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्राइव द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. दैट मींस सप्लाई एंड डिमांड आल्सो आर इंक्लूडेड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अंडर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? There are 3 types. Now the first one, feasible transportation, feasible solution. Understand? Feasible solution. This is the first one, feasible solution. Now again, question, what is feasible solution? Understand? What is feasible solution? अभी feasible solution क्या होता है? None negative of xij, none negative of xij where x are equals to 1,
2 up to n times, and I, and j is also equals to 1, 2 and n times. R say which is satisfied is given content of supply and demand, then it is also known as feasible solution. It is also, इसको मैं फिर से बताऊंगा कि ये एक्स आई जी क्या होता है, ठीक है. नेक्स्ट सॉल्यूशन इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. बेसिक feasible solution. Understand? All number of locations are positive. All number of location or destinations are positive and satisfy the equation n plus n minus 1. Then it is also known as basic feasible solution. अब ये m क्या होता है, m क्या होता है? Again, after the theory of transportation problem, I will discuss with you. Understand? Now the third one, optimum solution. Understand? Optimum solution. Optimum solution. Optimum solution is said as a feasible solution. Understand? That means decided minimize the transportation cost is called optimum solution, and the number and the total supply are equals to total demand. This is the three types of solution under transportation problem. The next one, fourth one, initial basic feasible solution. Feasible solution. Understand? This solution is solved by three methods. This solution is solved by three methods. First one, least cost method. Second, northwest corner method. Northwest corner method. And third, last one, Vogel approximation method. Vogel approximation method. ओके, ये था आपका फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जनरल थ्योरी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड होता है और उसके अंडर में कितने सॉल्यूशंस आते हैं और किस सॉल्यूशंस को किस मेथड से आपको सॉल्व करना होता है. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं. जो मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, फॉर एज पर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सोर्सेज. अंडरस्टैंड? सोर्सेज और ओरिजिन. ये सोर्सेज और ओरिजिन क्या होता है? ठीक, लोकेशन एंड डेस्टिनेशन. लोकेशन और डेस्टिनेशन. ओके, XIJ, CIJ, M एंड N. ये इतने आइटम्स के ऊपर मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया और these all the theories, these are items are included. ठीक है, अब सिंपल सी थ्योरी है. ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास क्या क्या चीज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. तो मैन्युफैक्चरिंग कहां होता है? फैक्ट्री में होता है. फैक्ट्री क्या करती है? आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग the produced goods are stored in warehouse. जो produced goods होते हैं उसको कहां रखती है? warehouse में रखती है. That means number of warehouse is called sources and origin. Clear? Second point, demand और supply. Demand and supply. ये
भाई फैक्ट्री में क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग किया एंड द प्रोड्यूस्ड गुड्स आर स्टोर इन वेयरहाउस. से नंबर ऑफ वेयरहाउस इज अंडर सोर्सेज और ओरिजिन. अंडरस्टैंड. सेकेंड पॉइंट, लोकेशन और डेस्टिनेशन. भाई वेयरहाउस क्या कर सकता है, वेयरहाउस क्या करेगा, सप्लाई करेगा. वेयरहाउस इज बिलोंग्स टू सप्लाई. अंडरस्टैंड. वेयरहाउस इज बिलोंग्स टू सप्लाई. वेयरहाउस क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है. किसको सप्लाई करेगा, कहीं ना कहीं डिमांड होगी. से नंबर ऑफ मार्केट, नंबर ऑफ मार्केट, नंबर ऑफ मार्केट. इट इज अंडर लोकेशन और डेस्टिनेशन. हमने जो डेफिनेशन बताया उसमें आपको बताया कहां से, सोर्सेज फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज टू नंबर ऑफ लोकेशन और डेस्टिनेशन. तो दैट मीन्स कहां से, वेयरहाउस से मार्केट. और मार्केट में क्या होता है, डिमांड होती है. मार्केट में क्या होता है, डिमांड. ठीक है. X is denoted by quantity of goods. Quantity of goods. Understand? X, that means quantity of goods. C, that means cost of goods. Clear? Where I is name of warehouse. Name of warehouse. नेम ऑफ वेयरहाउस. अगर हमारे पास ज्यादा है, अगर हमारे पास 3 वेयरहाउस है तो फर्स्ट वेयरहाउस है कि सेकंड वेयरहाउस है कि थर्ड वेयरहाउस है, दैट मींस नेम ऑफ वेयरहाउस. अंडरस्टैंड. एंड जे से नेम ऑफ मार्केट. नेम ऑफ मार्केट. सपोज दैट मोर देन one kinds of market are there, therefore first market or second market or third market or fourth market. Clear? All are the items are discussed with you, or this is an total number of warehouse. Total number of warehouse. Understand? And total number of market. Total number of market. ठीक है. क्योंकि एक्चुअली अगर इसको मैं सबमिशंस वर्ड से समझाऊंगा आप लोगों को तो आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी और आपको समझ में आने में गड़बड़ी होगी. इसलिए मैंने एक रफ लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया. रफ लैंग्वेज दैट मींस इजी लैंग्वेज. थ्योरेटिकल लैंग्वेज मैंने समझाया कि सोर्सेज और ओरिजिन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेयरहाउस आर देयर. कितने वेयरहाउस है तो वो नंबर ऑफ वेयरहाउस हम लोग सोर्सेज के अंतर्गत लेते हैं. लोकेशन और डेस्टिनेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मार्केट्स होती है. ठीक है. एक्स किससे डिनोट करते हैं, भाई ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमको गुड्स की जरूरत होगी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, तो गुड्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज डिनोटेड बाय एक्स. सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स. ठीक है. किस कीमत वाले गुड्स को हम लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी लेके जा रहे हैं. एंड टोटल नंबर ऑफ वेयरहाउस. अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेयरहाउस है, टोटल नंबर ऑफ मार्केट. हमारे पास अगर एक से ज्यादा मार्केट होंगे तो आपको टोटल लेना होगा. डिमांड इट इज बिलोंग्स टू मार्केट. सप्लाई इट इज बिलोंग्स टू वेयरहाउस, क्योंकि वेयरहाउस सप्लाई कर सकता है, किसको कर सकता है, मार्केट को कर सकता है. दैट मींस इफ डिमांड आर देयर, अगर डिमांड होगा मार्केट में तो वेयरहाउस उसको सप्लाई करेगा. ठीक है. और आई से नेम ऑफ वेयरहाउस, कौन से वेयरहाउस का है, जे से नेम ऑफ मार्केट. क्लियर. इसके बाद हम लोग चालू करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ हो तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे. नाउ द फर्स्ट मेथड बाय लिस्ट कॉस्ट मेथड. अंडरस्टैंड. द फर्स्ट क्वेश्चन आर गिवन. Now as per table number 1, okay. Now this is W1, W2, W3. That means this is W is denoted by warehouse. This is market 1, market 2, market 3, and market 4. And warehouse is supply and for demand for market 1.
and the 30, 29, 31 and 19, 25, 26, 33, 160, understand? 40, 35, 37 and 200, 20, 40, 30 and 50, and the supply is there 100 for warehouse 1, 250 for warehouse 2 and 150 for warehouse 3, and total is 500. Clear? Now this solution by list cost method. List cost method. Understand? न्यूनतम लागत विधि. First of all, discuss with you for table. Now the table number 1, how many types of items are there? W say called warehouse, M say called market, understand? And D for demand and S for supply. Understand? That means sum of all the demands for 4 markets. Sum of all the demands for 4 markets, M1, M2, M3 and M4. Say it is 500. Understand? Second thought, sum of supply of all the warehouses. All the warehouses, that means in this question 3 warehouses are there. Understand? Therefore sum of all the supply say 500. Understand? जब हम लोगों ने थ्योरी डिस्कशन किया था, this problem is belongs to balanced transportation problem. Understand? Clear? This is the first thing. Second, demand and supply all are given in unit form. यूनिट्स के फॉर्म में रहता है, क्वांटिटी के फॉर्म में होता है, इसलिए आपको एक चीज ध्यान देना होगा. हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था XIJ क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन फॉर्म ऑफ kg, units. Understand? Second, under the table all the items, that means this one, all the items are called cost. Understand? CIJ मैंने लिखा था cost of goods. Okay? Same, all are the in within box. That means this one is called cost. All are the values are cost. Okay? Now as per method, start करते हैं हम लोग solution. As per method, list cost method. Now step number 1, first of all decide the list cost as per table number 1. List cost, that means minimum cost. How many types of cost are there? 1, 2, 3, 4 and 3. मतलब 12 cost are there. Minimum cost, first of all choose the minimum cost 20. Understand? Step number 1, to find out the minimum cost as per table number 1. Therefore Cij are equals to 20. This is the minimum cost. Understand? अब मैंने क्या बताया था? I say name of warehouse. That means this cost 20 is belongs to which warehouse? 1. Therefore I are equals to 1. Understand? फिर J के बारे में मैंने क्या बताया था? Name of market. ठीक है? That means same, this cost 20 is belongs to which market? 20 is belongs to market 4. That means J से 4. Say C14 are equals to 20. Isn't it clear? Now 20 is under warehouse 1 and supply of warehouse 1. warehouse क्या कर सकता है? अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो सोर्सेज और ओरिजिन होती है वो क्या करती है? सप्लाई करती है. किसको करती है? डेस्टिनेशन और लोकेशन. अंडरस्टैंड? वेयरहाउस कितनी सप्लाई करेगा? 100 यूनिट्स. ठीक है? नाउ 20 इज अंडर मार्केट 4 एंड डिमांड ऑफ मार्केट 4. मार्केट में क्या होती है? डिमांड होती है. मार्केट 4 की डिमांड कितनी है? 50 यूनिट्स की. एक्सेस बैलेंस ये बैलेंस क्या होता है? एक्सेस
भाई आपकी सप्लाई 100 यूनिट्स की है, डिमांड 50 यूनिट्स की है, तो देयरफॉर द एक्सेस सप्लाई आर देयर, तो बैलेंस की जगह लिख दीजिए एक्सेस सप्लाई कितनी हो जाएगी 50, बहुत इजी है, ठीक है। नाउ द x14 भाई कितने यूनिट्स की आपने सप्लाई की अभी, भाई मेरे को खरीदना कितना था, मेरी डिमांड कितनी थी, 50 यूनिट्स की डिमांड थी, मैं वेयर हाउस 1 के पास गया, मैं कितनी सप्लाई कर रहा था, 100 सप्लाई कर रहा था, मतलब मैं आसानी से 50 यूनिट्स ले लिया, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट्स, नाउ x14 आर इक्वल्स टू 50, अंडरस्टैंड, x दैट मींस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितने गुड्स को हम लोग सप्लाई करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हैं, 50 को करने वाले हैं, किस रेट पे करने वाले हैं, एट द रेट ऑफ ₹20 ईच यूनिट, क्लियर, एकदम समझ में आया। अब आपके पास क्या होगा, मार्केट 4 की डिमांड टोटल 0 हो गई, क्लियर, और यहां सप्लाई कितनी बची है, सिर्फ 50 बची है, क्लियर, दैट मींस अब मार्केट 4 में डिमांड रहेगा नहीं, दैट मींस द टेबल फॉर द नेक्स्ट टेबल मार्केट 4 आर कैंसिल, अंडरस्टैंड। नाउ द टेबल नंबर 2, ठीक है, टेबल नंबर 2, warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3, this is the market 1, market 2, market 3, and supply, and this is demand। अब क्या बच गया, मार्केट 4 को ओमिट करना है आपको, 30, 29, 31, 90, 25, 26, 33 and 160, 40, 35, 37, 200 and the rest 50 units, 250 units, 150 units, 450। आप इसको सम कर लीजिए, ये बैलेंस होना चाहिए, अगर बैलेंस होगा तभी क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, क्योंकि दिस सम इज बिलोंग्स टू बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। स्टेप नंबर 2, again table number 2, now again same as it is, solution for step number 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट चूज करना है आपको इस टेबल में, मिनिमम कॉस्ट चूज करेंगे 25, ओके, नाउ Cij आर इक्वल्स टू 25, ठीक है। नाउ 25 इज बिलोंग्स टू वेयरहाउस 1, से I आर इक्वल्स टू 1 and J आर इक्वल्स टू 25 इज बिलोंग्स टू मार्केट 2, से 2, C12 आर इक्वल्स टू 25, clear, again same as it is for table number 1, 25 is under warehouse 1 and supply of warehouse 1, सप्लाई कितना कर सकता है 50 यूनिट्स, देख लीजिए सप्लाई 25 is under market 2 and demand of market 2 में डिमांड कितनी है 160 यूनिट्स की है, व्हाट इज एक्सेस बैलेंस, सप्लाई इज कंपैरिजन टू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड इज मैक्सिमम, देयरफॉर एक्सेस डिमांड आ जाएगा, एक्सेस डिमांड कितना हो जाएगा 110। अब कितनी यूनिट्स की आपने सप्लाई की, इंपॉर्टेंट ये था, व्हाट इज द डिमांड ऑफ यू, 160 यूनिट्स की आपका डिमांड था, मगर वेयर हाउस कितना दे रहा था, सिर्फ 50 यूनिट्स, दैट मींस सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली 50, therefore x12 are equals to 50, clear। अब टेबल में आ जाइए, वेयर हाउस 1 के पास क्या हो गया, सप्लाई 0 हो गया, मार्केट 2 का डिमांड कितना बचा 110, दैट मींस वेयर हाउस 1 के पास अब कोई भी सामान नहीं है, इसका मतलब आप इसको टेबल से फिर से ओमिट कर दीजिए, क्लियर। नाउ टेबल नंबर 3, सेम एज इट इज, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, मार्केट 1, मार्केट 2, मार्केट 3, सप्लाई एंड लास्ट D for demand, 29, 31, 90, 26, 33, 110, 35, 37,
200, this is 250 and 150, sum of these 400. Same as it is solved for फर्स्ट एंड सेकेंड टेबल. आपने जैसे फर्स्ट टेबल और सेकेंड टेबल को सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है. दैट मींस स्टेप नंबर 1 फॉर टेबल नंबर 3. स्टेप नंबर 1 फॉर टेबल नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द मिनिमम कॉस्ट एज पर टेबल नंबर 3. मिनिमम कॉस्ट इज 26. क्लियर? Therefore Cij are equals to 26. 26 is belongs to warehouse 2 and 26 is belongs to market 2. Therefore C22 are equals to 26. Clear? फिर से नोट कर दीजिए 26 is under warehouse 2 and supply of warehouse 2 are equals to 250 units. warehouse 2 में कितनी सप्लाई है? 250 units. फिर से चलिए आइए 26 में. 26 is under market 2 and demand of market 2. market 2 की डिमांड कितनी है? 110. now the excess supply are there. excess supply रहेगा आपके पास कितनी रहेगी? 140 यूनिट्स की रहेगी. अब हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट्स को आपको सप्लाई किया आपने? डिमांड कितनी थी? 110. 250 यूनिट्स आपको दे सकता था, इसका मतलब 110 यूनिट्स आप आराम से ले सकते हैं. therefore the result is becomes X22 are equals to 110. ठीक है? that means the transportation of 110 units at the rate of ₹26 each unit. clear? अब फिर से टेबल में आते हैं. क्या हुआ हमारे साथ? मार्केट 2 में डिमांड था जो पूरी हो गई हमारे पास. वेयरहाउस 2 ने पूरा किया और कितना बच गया उसके पास? 140. दैट मींस मार्केट 2 हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया. ठीक है? अब ये टेबल कब तक बनता रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, मगर अगर शुरू में बता दूंगा तो आपको वो मजा नहीं आएगा, वो क्लियरिटी नहीं होगी. इसलिए हम लोग कैलकुलेशन देखते जाते हैं. अब हम लोग ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट आया है पर्टिकुलर टेबल का वो हम लोग मेंशन कर लेते हैं. ठीक है? एक शॉर्टकट. नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टेबल द रिजल्ट इज X14 are equals to 50 units. For table number 2, X12 are equals to 50 units. For table number 3, X22 are equals to 110. ठीक? अब हम लोग चलते हैं टेबल नंबर 4 में. अब टेबल नंबर 4 में क्या आएगा सर? वेयरहाउस 2, 3, मार्केट 1 और मार्केट 3. अंडरस्टैंड? This is table number 4. Warehouse 2, warehouse 3. Now the market 1, market 3, and supply and demand. 29, 31, and 90, 35, 37, 200. Sum of this 290, 140 units, 150 units. Clear? Again the same. फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द मिनिमम कॉस्ट. अब चार कॉस्ट ही हैं आपके टेबल में. मिनिमम कॉस्ट बहुत आसान दिख रहा है 29. Cij are equals to 29. Therefore I are equals to 29 is belongs to warehouse 2. Say I are equals to 2 and J are equals to 1 because 29 is belongs to market 1. C21 sorry now right C21 are equals to 29. Same as it is 29 is under warehouse 2 and supply of warehouse 2 are equals to 140 units. Now 29 is under market 1 and demand of market 1 is 90 units. एक्सेस क्या होगा? मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आने लगा होगा कि एक्सेस इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? सप्लाई. नाउ द एक्सेस सप्लाई आर देयर are equals to 50 units. Now the result is becomes X12 are equals to कितने यूनिट्स के आप सप्लाई कर रहे हो? एज पर टेबल नंबर 4 90 यूनिट्स. दिस इज द रिजल्ट. 90 यूनिट्स की पूरी सप्लाई हो गई. दैट मींस डिमांड इज 0 फॉर मार्केट 1 बट सप्लाई आर देयर फॉर वेयरहाउस 2. क्लियर? दैट मींस द मार्केट 1 इज कैंसिल. क्लियर? जो 0 हो जाएगा, अगर मार्केट की डिमांड 0 हो जा रही है तो उस मार्केट को कैंसिल कर दीजिए. अगर जिस वेयरहाउस की सप्लाई 0 हो जा रही है तो उसके
उस वेयर हाउस को कैंसिल कर दीजिए। नाउ द टेबल नंबर 5. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ द रिजल्ट x12 are equals to 90. ठीक, टेबल नंबर 5, warehouse 2, warehouse 3, only market 3 are there, and supply and demand 35, 37 and 200, 50, 150 and 200. Clear? Again only two costs are there. First of all choose the minimum cost, say 35. Clear? Cij are equals to 35. 35 is belongs to warehouse 2, say I are equals to 2, and 35 is belongs to market 3, so J are equals to 3. Now the C23 are equals to 35, same as it is. 35 is under warehouse 2 and supply of warehouse 2 is 50 units. Clear? 35 is under market 3 and demand of market 3 is 200 units. Now rest part is demand 150 and the result is x23 are equals to 50. देखिए अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत बार बार लेंदी हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो कम होता है, इन दोनों में जो वैल्यू कम होती है वो रिजल्ट होता है, दैट मींस वो क्वांटिटी होती है। आप सारे टेबल में देख लीजिए, इन टेबल में देख लीजिए 140 और 90, विच एवर इज लेस, 90 इज लेस, दैट मींस रिजल्ट इज 90। अंडरस्टैंड? एक इजी मेथड और आपको बता दिया। चलिए अब 50 रिजल्ट आ गया, अब ये 0 हो गया और ये 150 हो गया। क्लियर? नाउ द रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल x 2 3 are equals to 50। अब लास्ट टेबल प्रिपेयर करेंगे हम लोग। दिस इज टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5, warehouse 3 and market 3, only cost are there 37, supply 150, demand 150. Now the sum of these 250, 150. Understand? Minimum cost एक ही cost है, only one cost are there 37, so it is also known as Cij are equals to 37, I are equals to 3, J are equals to 3, that because 37 is belongs to warehouse 3, say 3, 37 is belongs to market 3, say 3. Now 37 is under warehouse 3 and supply of warehouse 3 is 150 units. Understand? 37 is under market 3 and demand of market 3 is 150 unit. कोई भी चीज एक्सेस बचेगा क्या? ना सप्लाई एक्सेस है ना डिमांड एक्सेस है, दैट मींस एक्सेस आर इक्वल्स टू नील। अगर ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम में अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर कौन सा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर ये बैलेंस जीरो हो जाता है, एक्सेस जीरो हो जाता है, इसका मतलब है आपने जो सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? नाउ द रिजल्ट, अभी मैं बताया कि अगर आपने कितने यूनिट सप्लाई किए, अगर नहीं समझ में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल C33 are equals to 37, X33 are equals to 150। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? तो 150 ही रहेगा, therefore result is 150। ये हो गया X33 are equals to 150। क्लियर? अब ये हमने पूरे टेबल प्रिपेयर कर लिया, अब आपको रिजल्ट कैसे लिखना है वो सीखना होगा। क्लियर? नाउ द टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1, warehouse 1 2 3, market 1, market 2, market 3, market 4, this is supply and this is demand। चलिए आइए फटाक से क्वेश्चन नोट करते हैं। 30 29 31, 30 29 31, क्लियर? 25 26 33, 40 35
37, 20, 40, 30। चलिए अब रिजल्ट देखते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या आया था, x 1 4 आर इक्वल टू 50। 1 4 फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। फर्स्ट रो दैट मींस दिस वन एंड फोर्थ कॉलम दिस वन। कहां कैंसिल हो रहा है 20 के पास। रिजल्ट लिख दीजिए राउंड करके 50। ठीक है। सेकेंड x 1 2 आर इक्वल टू 50। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कहां कैंसिल हो रहा है 25 के पास। 25 के पास राउंड करके लिख दीजिए 50। ठीक है। थर्ड रिजल्ट सेकेंड x 2 2 आर इक्वल्स टू 110। 2 2 दैट मींस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके। सेकेंड रो दैट मींस दिस वन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट मींस 26। राउंड करके 110 लिख दीजिए। क्लियर। 12 x 1 2 आर इक्वल्स टू 90। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो हमने कुछ गलत कर दिया है। नाउ दिस इज द टेबल नंबर 3। और एक मिनट मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं। टेबल नंबर 3। नाउ द टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 एंड टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 में जो रिजल्ट है 2 1 है। 29 के लिए 2 1 है। Sorry, 2 1. Now the result, एक मिनट। Now the result x 2 2 110 और 2 9 90। ठीक है। x 2 1 देखिए लिखते हुए मुझसे भी गलती हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान देकर लिखना है। x 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 29 and the result is becomes 90। नेक्स्ट वन 2 3 x 2 3 means second row third column। second row third column that means 35। okay, now the result is 50। clear। now third row and third column third row that means warehouse के लिए third column। now the result is 150। अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि ये मैंने 1 4 लिखा है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम बोल दिया। एक्चुअली मैंने आपको, क्योंकि हम लोग इजी ट्रैक में पढ़ना है तो वो हम रो और कॉलम बहुत आसान होता है, मगर फर्स्ट वन इज वेयर हाउस 1 एंड मार्केट 4। वेयर हाउस 1 एंड मार्केट 4 कहां क्रॉस कर रहा है आपको, तो देखेंगे आप 20 के पास, तो वहां राउंड करके 50 लिख देंगे। क्लियर। ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मैंने सिर्फ आपको इजी और समझाने के लिए बताया। अब रिजल्ट कैसे ओरिएंटेड होगा बेटा। This is the result. That means first of all rupees 25 this is the cost and 50 is the unit। 50 यूनिट को आप at the rate of rupees 25 per unit आप क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज करते हैं। That means टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 25 into 50। क्लियर। प्लस साइन 20 into 50 प्लस साइन 29 into 90 प्लस साइन 26 इंटू 110 प्लस 35 इंटू 50 प्लस 37 इंटू 1। अब ये सारे को आप सॉल्व कर दीजिए और आप रिजल्ट आ जाएगा आपका 15,020। 15,020 दिस इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है। और मैं आप लोगों को अपने सब्सक्राइबर जो हैं या फिर जो न्यू व्यूअर्स हैं उन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑफ माय चैनल तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज 2 or 3 वीडियो, इट मे बी 3 or 4 फॉर एवरी वीक ऑन my YouTube channel। okay, thank you very much।